chapter number 5. Okay, so chapter number 5, page number 8. I taught you in chapter 5 about Chirag. Sit properly. Hazel, what are you doing? What are you doing? Love, Kush, show me your face and sit properly on one place. Love and Kush. Love and Laksha. Sit properly on one place. Yes. Open book page number 8. Nouns. In this chapter, you read about the person, place, animal. So, I will show you the screen. देखिए, in this chapter, look at the following sentences. Abhijit is tall. Abhijit is the name of a person, and the cat is sleeping. The cat is name of a animal, and Neha is going to school. School is the name of a place, and the pen is beautiful. This pen is beautiful. Pen is the name of things. So all these things, the Abhishek, cat, Neha, school, and pen. These are then all these things are have name, and all these things are called naming words or nouns. All the naming words are called noun. So everyone knows what is noun. सभी को पता है noun क्या होता है? सब लोग जानते हैं बेटा? Tell me. Varnika. Varnika, you know what is a noun? Yes. Who tell me? Raise your hand. Yes. Wait a minute. Anjali Khemani. Yes. Anjali Khemani. Anjali Khemani, can you hear me? Yes, beta. What happened? Excuse me, मैम बोलिए. मैम ये अभी आप नाउ वो चैप्टर 5 पर पढ़ा रहे हो क्या? पढ़ा नहीं हूँ, मैं रिवाइज करा रही हूँ. मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके बाद मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी सबसे क्लास में. ओके? So you all know what is a noun? The name of a person, place, animal, or thing called noun. All the, yeah, or you can say in other words, naming words are called noun. So you all know about noun. सभी को सब पता है नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम और थिंग का नेम क्या कहलाता है? नाउन. सो एंड यू नो about so I will give you some questions about nouns and you solve it. Yes, wait a minute, Bhavini. Yes, Bhavini. Bhavini, what happened? Tell me, Bhavini. Bhavini, बोलिए बेटा. Unmute yourself, Bhavini. Mute. Excuse me, ma'am. बोलिए.
मैम ये जो है ना अभी है ना क्या बोलते हैं उसको, एक तो आप है ना एक ऐसे क्लास लेते हो ना हमारी और वाली, तो मैम उसमें आपकी एक तो आवाज भी नहीं आती है सही से, और अब जो पढ़ाते हो वो तो अच्छे से समझ में आता है। समझ में आता है ना? तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं नाउन, और जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम आपको वर्कशीट करवाने वाले हैं। अभी मैं आपको उस पर शो करूंगी स्क्रीन पर वर्कशीट को, और उससे रिलेटेड आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं, वो मैं चेक करूंगी। ओके, इज इट ओके फॉर यू? In first question, pick out the nouns and write the place given below. आपको नजर आ रहा है जो सेंटेंस लिखा है उसके साइड में मैंने एक ब्लैंक दिया हुआ है, उस ब्लैंक पर आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको इसमें से नाउन पिक आउट करना है। मींस इन फर्स्ट सेंटेंस राम इज गोइंग टू मार्केट. In this sentence there are two noun words, two naming words in this sentence, so you can underline both the words and pick out them and write the place given below. जो साइड में आपको प्लेस दिया हुआ है इसके नीचे, वहां पर आपको लिखना है। इन फर्स्ट सेंटेंस यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. Each and every student participate in this work revision worksheet and write your answers in chat box. Okay, wait a minute. Yes, Ram, very good Prakul. Ram and market. राम एंड मार्केट, यस वेरी गुड प्राकुल, नितिन, लक्षिता, हरलिन बेटा आपने एक ही आंसर दिया है। इस सेंटेंस में दो हैं, एक तो पर्सन का नेम है राम और दूसरा है प्लेस जो कि है मार्केट। तो आप लोग इसको सर्कल या अंडरलाइन करें, और साइड में जो दो लाइंस दी हुई है उसे वहां पर आपको लिखना है। जब ये वर्कशीट में आपको दूंगी तो आप इसे अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे एज अ रिविजन वर्कशीट नंबर 1 डालकर, और उसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके, सो यस एवरीवन, बेटा 1 बाय 1 चलिए, आगे आगे किसी को नहीं भागना है। नितिन, फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका सौम्या वेरी गुड बेटा आपने ठीक लिखा है, और कल्पित आपने एक आंसर दिया जबकि इसमें दो आंसर होने चाहिए। ओके, सो द राइट आंसर इज राम एंड मार्केट. ओके, there are two answers in sentence. Yes, wait a minute. Yes. Now the second sentence is, second sentence number, देखिए आप लोग, in the second sentence the Taj Mahal is a grand monument. The Taj Mahal is the great monument. And the third one is the children are playing in the garden. In second sentence the Taj Mahal is a great monument. You can write your answer number 2 uh, in chat box, and number 3, children are playing in garden. In this sentence again two naming words. Okay, so you can write your answer 2 and 3 in chat box, and I will check it. Yes, the number 2, answer number 2 is Taj Mahal. Well done Somit, well done Kalpit, Lakshita, Divyansh Khatri, Garv and Prakul. Very good, well done all of you. And rest the student, बेटा ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट इन दिस रिवीजन. आप लोग सिर्फ क्लास में बैठने के लिए थोड़ी आए हैं, आप सबको भी तो समझ में आता है ना पर्सन प्लेस एनिमल थिंग क्या होता है. आपको सेंटेंस को रीड करना है और उसमें से पिक आउट करके आपको साइड में लिखना है. तो चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं ना आप लोग? लिखिए चैट बॉक्स में, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे. यस, एंड इन सेकंड सेंटेंस, यस महक वेट अ मिनट, महक वेट अ मिनट. महक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ महक, महक अनम्यूट योरसेल्फ. Wait a minute, I will try. महक का नाम शो नहीं हो रहा है इसमें.
महक, राइट योर प्रॉब्लम इन चैट बॉक्स बेटा, चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। ओके, यस। इन थर्ड क्वेश्चन, the answer of third question is there are two naming words. Yes, there are two naming words in third sentence. Children are playing in the garden. Children and garden. Yes. Somit Singh, wait a minute beta. Yes, Somit. Somit, unmute yourself. Somit. Somit. Yes, Somit. मैम वो पेस्ट हो गया था गलती से, तो इसलिए आ गया था मैसेज। ओके, मेरी क्लास चल रही थी ना इसलिए। बेटा लेकिन आप ये देखो, ध्यान से काम किया करो, गलती मत करोगे क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होता है क्लास में। ओके, नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ दिस। ओके, यस Manan. Manan, what happened? Manan. Yes Manan, tell me what happened. बोलिए बेटा, दूसरा मेरे को मिली। क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है मुझे। मैम आप जो बेटा यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज मुझे प्रॉपरली नहीं आ रही है। ध्यान, अच्छा आप अपनी प्रॉब्लम उस पर लिख कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। ओके, yes, now the third answer is children and wait a minute Ashi, wait a minute beta. Children and garden, both the words in this sentence, both the words are naming word. Yes, very good, well done Harleen, Prakol, Hazel and Lakshita, Bhavini. Very good beta. भाविनी ने क्या लिखा है? भाविनी का आंसर रॉन्ग है। सो वेट अ मिनट आशी, यस यस बेटा, व्हाट हैपेंड आशी? आशी अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा। मैम जो अभी आपने कॉपी में वर्क दिखाया था वो करना है क्या? बेटा जो मैंने कॉपी में वर्क दिखा रही हूँ ना, वो मैं आपको पीडीएफ सेंड करने वाली हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे एज अ रिवीजन वर्क। मैम रीडर में, ओ बेटा ग्रामर है तो ग्रामर में करेंगे, रीडर में क्यों करेंगे? Our next sentence is the cow is grazing in the field. There are also two naming words in this sentence. Number 4, you can write in your chat box now answer number 4 and 5 both. Okay, so write the two naming words in sentence number 4, and the 5 sentence is mangoes are sweet in taste. So you can write both the answer in your chat box. Okay, yes, answer number 4. First you write answer number 4. Yes, cow and field. Very good, Sumit. Lakshita, there are two naming words in this sentence, cows and fields, because field is a place and cow is an animal. Yes, Harleen, well done. And Somit, well done, Somit. Yes. Divyansh Khatri, well done, Divyansh, well done, Nitin. And Kashish Verma. बेटा आपका ये तो सेकंड आंसर ही चल रहा है अभी तक। एंड वेरी गुड सौम्या, गर्व पारियानी, सोमित,
Yes, Garv Prajapat. Yes, all of you. Hazel, well done, all of you. Your answer is correct. So now here is our next question, and this is a very easy question. You all of you attempt this question. सभी लोग इसे कर सकते हैं और सभी से मुझे आंसर चाहिए. बाकी बच्चे बैठे ही नहीं, सब मैच करेंगे और बताएंगे. ओके, देखिए. The second question is match the following. In the second question, match the following. You can match which thing is number one. You can match column A with column B. Book. Book. What is a book? Book is a person, place, thing, or animal. So you can write your answer in chat box. Book, and book is a person, place, animal or thing. उसके सामने आप लिख देंगे book is a person or animal or thing. जो भी है उसके सामने आप लिख देंगे. Now answer number 2. Rajesh. Who is Rajesh? Rajesh is a boy, place, or animal. So you can write number 2, Rajesh. जो भी वो है person, place, animal, thing, उसके सामने आपको लिख देना है. Agra. Agra is a place or as a person or animal. You can write in chat box answer number 3, Agra, whatever it is. Okay. And number 4, tiger. Who is tiger? Animal, person, place, or thing. You can write answer number 4 in your chat box. Tiger, whatever it is, you can write in your chat box. Yes. I will check now. Pune place. Pune क्या है? What is Pune? बेटा write all the answers together. सारे answers एक साथ लिखकर भेजेंगे आप लोग. Yes. The first number. अच्छा मैं बोल रही हूँ number 1. तो number 1 क्या है राजेश? number 1 है book. Book is a person, place, or thing. Yes. Wait a minute. Yes, Harshit. Harshit, tell me beta what happened. Harshit. आपसे स्टार्टिंग से क्यों पढ़ा? मैम. Harshit, you are not audible beta. Yes. Beta, your voice is not coming properly. Excuse me, मैम. मैम आप बच्चों को वापस से स्टार्टिंग से क्यों सारा काम करवा रहे हो? मैम आई थिंक रिवीजन के लिए स्टार्टिंग से सब कुछ करवाना पड़ता है. एग्जाम आने वाले हैं तो मुझे वापस से रिवीजन लेना होगा. ओके. मैम एग्जाम कब है? वो आपको डेट शीट मिल जाएगी. हमें रिवीजन के लिए कहा गया है, इसलिए हमने रिवीजन स्टार्ट किया है. ओके, ओके मैम. थैंक यू. वेलकम. स्टार्ट होने वाले हैं. यस, मनन शर्मा. मनन शर्मा. मनन शर्मा. मनन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मनन. Yes, Manan. Manan, unmute yourself, beta. Manan, unmute yourself.
Okay, so here we go with question number 3. Yes. Now question number 3 is, you all know about the plural, singular and plural word. Okay, so in this question number 3, write the plural of these nouns. Class, I taught you all the rules to make the plural word classes. After class word, there is a his sound after end of this word. CLASS, class. Class. His sound आ रहा है तो हमें इसमें क्या ऐड करना है? Yes, very good. Well done, Bhavini. Well done. Classes. The right answer is classes. So you can write in this, in the place given below, classes. Bhavini, Divyansh, Khatri, Prakul. Well done, all of you. Yes. बुक थिंग है, वेरी गुड. यस, ये कल्पित ने सारे आंसर एक साथ लिखे हैं और वेल डन कल्पित, योर ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. बुक इज अ थिंग, राजेश इज अ पर्सन, एनिमल. जैसे बेटा आप इसने आंसर लिखे ना 1 2 3 4 मैच द फॉलोइंग में, ऐसे ही आप सबको भी लिखने थे. ओके, सो here is our question number 3. In question number 3 you can write plural for each of word, for each word. So here is the next word. After class, the second word is fox. Fox, fox. So one fox and many, क्या हो जाएगा बताइए? वेरी गुड. इसमें भी क्या लग जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पर? FOXES, foxes. क्या बन जाएगा? One fox and many foxes. बिकॉज यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी हिज साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे? ES ऐड कर देंगे. वेरी गुड हरलिन, वेल डन. दिव्यांश खत्री, वेल डन. यस लक्षिता, वेल डन ऑल ऑफ यू. यस यस यस, वेल डन. वेल डन हरलिन, वेल डन लक्षिता, वेल डन ज्योति. भाविनी, भाविनी बेटा आप वेल डन क्यों लिख रहे हैं? Why you write well done in this? This is not an answer of this question. सौम्या, वेरी गुड. सौम्या बेटा नेक्स्ट का आंसर दीजिए आप. एंड हर्षित, देव शेखावत, वेल डन ऑल ऑफ यू. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मैंगो. मैंगो. In this word mango, this word is end with O. So we can also add in this word ES. Because जब वॉवल आता है लास्ट में O होता है, तब भी हम उसमें क्या डालते हैं? ES को ऐड कर देते हैं. अंडरस्टैंड? बताए थे मैंने आपको रूल, जहां पर वॉवल होगा लास्ट में O वर्ड आएगा जिसमें हमें उसमें ES ऐड करना है. जहां पर हिज साउंड आएगा SH, CH, X और क्या आएगा? SH, CH, S, डबल S और X आता है, वहां भी हमको एंड में क्या करना होता है? हमको ES ऐड करना होता है. ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज, वेरी गुड. हु गिव्स द आंसर ऑफ नेक्स्ट वर्ड? Lakshita, well done Lakshita. The right answer is story. But why you can add in this IES? क्यों किया आपने इसमें IES? Who tell me? Who told me this thing? मुझे कौन बताने वाला है? Yes. Yes, दिव्यांश खत्री. दिव्यांश खत्री. Divyansh Khatri, can you hear me? Yes, ma'am. Tell me बेटा what happened? Why you raise your hand? मैम क्योंकि आपने Y वाला जो पूछा था ना, हाँ जो Y बताइए. होता है वो हमेशा प्लूरल होके I बन जाता है.
ये होता है कि जब जो y वाला है उसमें अगर y से पहले, इसका रूल है, y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, अगर वोवल है तब तो हम उसमें ऐड कर देंगे s, लेकिन अगर उसके आगे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड है, ए बी सी डी में से ए ई आई ओ को छोड़ के और कोई लेटर आता है तो वहां पर हम y को रिमूव कर देते हैं और उसमें IES ऐड कर देते हैं। अंडरस्टैंड? मैम इसको कॉन्सोनेंट प्लस वाई बोलते हैं ना? कॉन्सोनेंट प्लस y बोलते हैं। वेरी गुड। कॉन्सोनेंट प्लस y जहां पर आएगा वहां पर हमको क्या करना होता है, उसमें y को रिमूव करके उसमें IES लिख देना होता है। सो ऑल ऑफ यू बेटा म्यूट योरसेल्फ, दिव्यांश म्यूट योरसेल्फ। सो एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, जब भी y वर्ड दिया होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट दिया है, ए ई आई ओ यू तो वोवल होते हैं, और उनको छोड़ने के बाद ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कोई और लेटर दिया होता है जैसे कि बी है या आर है या कुछ भी दे रखा है, टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो वहां पर हम उसको क्या करेंगे, उसको y को रिमूव कर देंगे और वहां पर IES आकर उसका प्लूरल बना देंगे। ओके भाविनी, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट फॉर योर क्वेरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मैंगो का मैंगोज होता है क्योंकि लास्ट में वॉवल होता है, एंड आवर नेक्स्ट टू वर्ड्स आर यस। You can write both the answers in chat box. देखिए, in this word number 5 and 6, number 5 है leaf और number 6 है tooth। तो यहाँ पर leaf दिया हुआ है, तो leaf वाले वर्ड के लिए हमारा क्या रूल था, जहां पर f होता है वहां हमें क्या करना होता है, you can write your answer number 5 and 6 both in your chat box and give proper answer. Yes. Only one answer is there. Yeah, very good. Divyansh Khatri, leaves. Yes, yes. Divyansh Khatri and Somit ने दोनों आंसर दे दिए हैं। Well done, Somit. Yes. Tooth का आंसर हो जाएगा teeth. Bhavini, wait for one minute moment. I told you already that wait for your query. सुनिए मेरी बात अब आप लोग सब ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको वापस से बता रही हूँ इसका रूल। जहां पर लास्ट में वर्ड के जैसे LEAF लीफ F आ रहा है, वहां पर हमें क्या करना होता है, F और FE अगर होता है, या तो F होता है या FE होता है, तो F और FE को रिमूव करके वहां पर हम VES लगा देते हैं। तो वो वर्ड क्या बन जाएगा, LEAVES बन जाएगा। क्या बन जाएगा, LEAVES, लीफ का बन जाएगा LEAVES, लीव्स। One leaf and many leaves. I hope you all of you understand. सभी को समझ में आ गया क्या क्यों करते हैं वैसा? हेजल, do you understand what I'm saying? है ना? और जो हमारा ये है टूथ है, टूथ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं हो पाते हैं और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें हमें लर्न करना होता है। फॉर एग्जाम्पल टूथ यानी एक दांत, और उसके लिए मैनी बनाना है, हमको प्लूरल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका वर्ड दूसरा बन जाएगा, उसमें डबल ओ की जगह पर डबल ई बन जाता है, TEETH, टीथ बन जाएगा, मैनी टीथ हो जाएगा। टीथ नहीं बोलोगे, टूथ्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे TEETH, टीथ। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस गर्वपारायणी, आपको समझ में आ गया? यस वंशिका, सोनी, योर आंसर इज राइट। यहाँ पर वाइफ में क्या दिया हुआ है, WIFE दिया है, तो आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। वाइफ में FE को हटा के VES लगा दिया, तो WIVES, वाइव्स। वन वाइफ और मेनी वाइव्स। ओके ओके, सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Yes, the next question is, अभी हमने रिसेंटली कल आपको चैप्टर पढ़ाया था आस्किंग क्वेश्चन, पढ़ाया था ना सभी लोगों को। उसमें हमने आपको बताया था कि जो, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट फॉर दिस। आपको क्वेश्चन बनाना था वापस से, फिर से।
Yes. Wait a minute. देखिए बेटा, इसमें क्या है, हमने कल आपको पढ़ाया था कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होगा और उसमें जो है चेंज द पोजीशन ऑफ द वर्ड, चेंज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड उसको पोजीशन चेंज करनी है, उसको आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है। सबसे पहले आपको अंडरलाइन वर्ड को लिखना है और उसका वर्ड कैपिटल में आएगा, उसे आपको पहले लिखना है और बाकी रेस्ट द सेंटेंस यू कैन राइट आफ्टर द after helping verb. Underline word is called helping verb and you can write all the sentence after this helping word. सबसे पहले आपको helping word लिखना है, जैसे कि इसमें underline क्या हुआ है is, तो आप पहले लिखेंगे the sentence is she is very beautiful girl. तो आपको इसका क्वेश्चन में फ्रेम करना होगा अंडरलाइन वर्ड को पहले लिख के, अंडरलाइन वर्ड को आप पहले लिख देंगे, वहां पर लिखेंगे आप is she very beautiful girl और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. So you can write your answer in chat box and I will check it. Yes, is नेहा नहीं है बेटा, इसमें नेहा तो नेक्स्ट है. Very good, well done दिव्यांश खत्री. Both the answers are right. दिव्यांश खत्री और both answers are right and Harleen you too. बेटा आप दोनों का और कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है क्या बेटा? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में पहले उसको लिख देना है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और बाकी का सेंटेंस जो है सारा आपको लास्ट में कॉपी करके उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा. सो आई थिंक यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. You can write helping verb, the underline word in the beginning of the sentence and you can mark question mark, write question mark end of the sentence, so to make your question. Yes Kalpit, well done. Nitin, is she beautiful, is she very beautiful girl? Yes. Divyansh Khatri, well done. Was Neha, yes. So I think all of you understand how we make this question, how we make questions. Yes, if you understand then raise your hand. अगर आपको समझ में आ गया तो रेज करिए अपना हैंड, और जिनको समझ में नहीं आया वो मुझे बताएंगे. चिराग, you don't understand? You don't understand this thing? Then why don't you raise your hand? Yes, very good, well done. Yes Hazel, आपको समझ में आया बेटा? तो फिर आपने हैंड रेज नहीं किया, राशुल ने नहीं किया, अपना हैंड रेज करिए. वेरी गुड, मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे आपको. सार्थक जैन, व्हाट आर यू डूइंग? कशिश, रेज योर हैंड. कशिश, रेज योर हैंड बेटा. यस. सोमित, डू यू अंडरस्टैंड? सोमित, आपको समझ में आया? सोमित, देव, जिनको समझ में आया है वो अपना हैंड रेज करेंगे. मौली, डोंट सेंड द मैसेजेस. यस एवरीवन, वेरी गुड. हरलेन, सिट डाउन हरलेन. हरलेन सिट डाउन. पीयूष सोनी, शो मी योर फेस. वेयर आर यू पीयूष? Yes, Varnika, your answer is correct. Ananya, yes, very good बेटा, समझ में आया आपको? Very good. अक्षिता, do you understand? आपको समझ में आया कैसे बनाना है क्वेश्चन, कैसे में फ्रेम करना है? Okay. Yes, आशी, बेटा समझ में आया आपको? पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेना है स्टार्टिंग में, कैपिटल लेटर लिख करके. इज लिखा है तो उसमें आई आपका कैपिटल आएगा. इज शी
वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क, जिससे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। एंड जितेश प्राकुल, डू यू अंडरस्टैंड? रेज योर हैंड। Yes. So I will send this worksheet on your WhatsApp group. Okay. So you can do it in your notebook as a revision worksheet number 1. आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे रिवीजन वर्कशीट नंबर 1 और उसको अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके। कल मैं सबसे पूछूंगी, सारे आंसर मैच करवाऊंगी सबको, ठीक है। Is it okay for you सार्थक वशिष्ठ? Molly, sit properly, beta. Yes, all of you. Okay, so our class is over for today. Bye bye.